students, from yesterday onwards, we were doing the chapter called Indian National Movement and the Independence. There we finished why the feelings of nationalism arise in the minds and the hearts of the people. What were the demands of the moderates? Okay, what were the demands of the moderates? We have studied. Now today we will study that after some period national movement, okay, means INC, Indian National Congress was formed. We already know that who started the spread the national movement in the large scale. So after some period in the Congress only, that means in INC only, there were two group of people emerged. One is moderates who mostly believe in the peace, non-violence, and giving the petition to the whom? Britishers. And another group was radicals. Okay, another group were radicals who were believe in the violence, who directly wanted to fight against the Britishers. They don't want to give any petitions. They also wanted to freedom, but in a non-violent way. Violent way. That they were in the violent way. Radicals need independence in the radical. They want independence in violent way. ये लोग क्या चाहते थे कि लड़ाई करके ब्रिटिश के साथ लड़ाई करके ना लोगों को के साथ युद्ध करके भारत को आजादी दिलाना चाहते थे। और एक थे moderates another were the moderates who believe they want independence. With independence, they want independence in a non-violent way. मगर ये लोग चाहते थे अहिंसावादी तरीका से भारत को आजादी दिलाए। ये था। अब हम लोग we have already finished this, है ना? In yesterday class we have finished, हमने कल ही खत्म कर दिया। So today we are starting a new chapter, new topic that is called radicals, and the movement started by the radicals only. Radicals are those people who want independence in a violent way. The three people are very much famous in the radicals. They were called Lal Bagh and Pa. They call Lal Bagh and Pa. Means Lala Lajpat Roy, Bipin Chandra Pal, and who is this? Bipin Chandra Pal, tell Lala Lajpat Roy, and this is Bal Gangadhar Tilak. This is Bal Gangadhar Tilak. Lala Lajpat Roy, Bal Gangadhar Tilak, and Bipin Chandra Pal. So they were the profounder of radicals in India, and we have already studied in the class also. है ना? हमने class में भी पढ़ा है. Okay, you don't have to worry. Okay. So now, this is the introductory part of this particular topic. Okay. Those who were the members of the radicals, they were very much brave. They were very brave, bold, and
patriotic. They mostly fought for the Swaraj. They mostly fought for the Swaraj. ये लोग स्वराज के लिए लड़े. ठीक है. स्वराज means own government. स्व means own, राज means government. तो own government अपना ही सरकार चाहते थे, ना कि they want the government that based on the British. क्योंकि British were oppressing the people of India. They were controlling. They make the India as the colony. So for that, the members of radicals need Swaraj. One of the person, very famous person, Bal Gangadhar Tilak, gave the famous slogan. It was, Swaraj is my birthright, I shall have it. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, में इसको लेकर ही रहूंगा. ये कहने वाला व्यक्ति कौन था? आपका बाल गंगाधर तिलक, जो रेडिकल्स के एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर्स हुआ करते थे. सो हियर योर्स पर्टिकुलर वन चैप्टर, वन टॉपिक कंप्लीटेड. ओके, वन टॉपिक particular one topic completed. Okay, here only one question will come. Who were Lal Bal Pal? This is Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, and Bipin Chandra Pal. Who were radicals? Radicals were the member who want independence in a violent way. वो लोग अहिंसावादी ढंग से भारत आजाद करना चाहते थे, और दूसरे थे moderates who want independence in a non-violent way. So now we are moving towards the another topic. Okay, that is wait for a minute. Another topic, partition of Bengal. Partition of Bengal. Okay, partition of Bengal. Bengal विभाजन. Partition of Bengal. Okay, partition of Bengal, and it was held in the year. Sorry, it was held in the year 1905. 1905. The viceroy of that period, viceroy of that period was Lord Curzon. Lord Curzon. Viceroy was Lord Curzon. Viceroy कौन थे? Lord Curzon. बंगाल विभाजन कब हुए? 1905. So what was the reason behind the Bengal partition? Bengal partition होने का कारण क्या? There were two reasons given by the different group. One by the Britishers and one by the Indians. है ना? What the Britishers talks about the partition of Bengal? Why? What reason they gave for the partition of Bengal? So Britishers, according to the Britishers, okay, according to the Britishers, that is not constitutional. What reason they gave? They gave, according to Britishers, they gave administrative reason. They gave administrative reason. प्रशासनिक कारण, होते ना प्रशासनिक. एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन मतलब बंगाल बहुत ही बड़ा नाम है. बंगाल और ब्रिटिश ने बोले कारण तो बताना होता है. असलियत कहानी बताएंगे बाद में ना, थोड़ी एक मिनट रुके असलियत का कहानी बताएंगे क्यों हुआ था. ब्रिटिश ने बोला कि बंगाल बहुत बड़ा है, बंगाल इज वेरी मच लार्ज, सो वी हैव टू divide into two parts. One is East Bengal, one is the West Bengal. So what the reason Britishers said administrative region, मतलब इसको कंट्रोल करने पे बहुत समस्या आ रहा है. बंगाल बहुत बड़ा है तो इसको दो भाग में विभाजित किया जाता. मगर what was the real region? अभी समझेंगे ना. What was the real region? असलियत में कहानी ये नहीं था. असलियत में कहानी दूसरा ही था. ये लिखेंगे हो क्या? According to the Indians, असलियत में के according to the Indians, असलियत में है ना, in the real sense, असलियत रियल था. It is real. ये था real region. It was the real region.
है ना, इंडियन के द्वारा या तो रियल रीजन था। व्हाट वाज द रियल रीजन? दिखा दे रहा था, इट वाज द रियल रीजन था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। किसको डिवाइड कर किसको रूल करेंगे? हिंदू मुस्लिम, हिंदू एंड मुस्लिम, है ना, हिंदू मुस्लिम को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके उसको रूल करेंगे। क्योंकि बंगाल, आपको पता होना चाहिए, बंगाल एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस था जो पूरे भारत को कंट्रोल करते थे। क्योंकि 1911 से पहले बंगाल वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये पता हम लोगों को है ना। 1911 से पहले बंगाल भारत का कैपिटल थी। 1932 में फाइनली इसको बनाया गया। तो व्हाट एवर द ये जो मूवमेंट होते थे ना, जो मूवमेंट होते थे, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द बंगाल एंड द पीपल्स ऑफ द बंगाल वर वेरी मच लिटरेट, है ना, वेरी मच लिटरेट। उन लोगों को ये भी पता था, लाइक पर्सन लाइक राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, अविनेंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना, दीनबंधु मित्रा, है ना, these were the famous personalities. देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, they were the freedom fighters of India, they were the freedom fighters of India. तो बंगाल से ज़्यादा ही मूवमेंट को लीड किया जा रहा था, कि बंगाल को ज़्यादा मूवमेंट से लीड किया जा रहा था। तो ब्रिटिश ने सोचा कि अगर हम लोग बंगाल को इस तरह ऐसे ही छोड़ेंगे तो भविष्य में जाकर बंगाल विल गिव वेरी मच प्रॉब्लम, है ना। इसको पार्टीशन, इसको तोड़ना जरूरी है। उन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दिए, मगर असलियत में क्या था कहानी? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। मतलब पहले उसको बांटो और बांटने के बाद क्या करो? रूल करो। उसके हिंदू और मुस्लिम, है ना, उधर बांग्लादेश प्रोविंस में मुस्लिम रह गए और इधर आपके बिहार, बंगाल, असम रीजन में कौन रह गए? हमारा हिंदू लोग रह गए। तो इस तरह ब्रिटिश ने बंगाल को बांटने का काम किया। और ये देखिए, आपने पता होगा 1905 से बंगाल पार्टीशन का आइडिया रखा गया और बंगाल पार्टीशन होता है फाइनली 1911, है ना। 1911 फेमस पीरियड है, इसको बोलते हैं हम लोग दिल्ली दरबार के नाम से भी जानते हैं ना, दिल्ली दरबार के नाम से भी जानते हैं ना। क्योंकि उस समय कौन बने थे? इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज द फाइव, किंग जॉर्ज पांचवी बोलते हैं ना, किंग जॉर्ज द फाइव इंग्लैंड के राजा बने थे। उसके ही टू कमेमोरेट ना, उस खुशी मनाने के लिए, कमेमोरेट में खुशी मनाने के लिए दिल्ली में एक दरबार रखा गया, जिसको दिल्ली दरबार बोला गया। और दिल्ली दरबार में बंगाल पार्टीशन को फाइनलाइज किया गया। तो ऑफिशियली नौ बंगाल अब क्या हो चुके थे? पार्टीशन हो चुके थे। अब इस तरह का चीज याद करना, ओके, इस तरह का चीज याद करना होगा, ओके। यू हैव टू नो दिस टाइप ऑफ टॉपिक वेरी वेल। बंगाल पार्टीशन कब हुआ, उस समय के वाइसरॉय कौन थे, है ना, क्यों किया गया? दो रीजन बोले मैंने, ये तो इंडियन द्वारा, ये दिस इज द रियल रीजन, ये तो रियल रीजन, है ना, ये इंडियन का द्वारा किया गया रियल रीजन। डिवाइड एंड रूल करना हिंदू और मुस्लिम को, और ब्रिटिश का बोला आप लोगों, ब्रिटिश का क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। क्योंकि बंगाल, ब्रिटिश बोले कि बंगाल बहुत ही बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या करना होगा? इसको मतलब डिवाइड करके ना, पार्टीशन डिवाइड करके रूल करना, पार्टीशन को डिवाइड कर देना, है ना। पार्टीशन में भी तो होता है ना, पार्टीशन एक पार्टीशन है, देखो यहाँ ब्लैक बोर्ड लगा है, इसके ऊपर अनदर क्लास है और इसके इधर दूसरा क्लास है। तो ये अब एक चीज अब पढ़ेंगे, दूसरा चीज, ओके, अनदर चीज पढ़ेंगे, पार्टीशन से रिलेटेड एक चीज पढ़ेंगे, ओके। तो समझ आ गया है ना, समझ आ गया होगा। तो when the Bengal was partition, Bengal was partition in the 1905, आसान है। और बोलिए सर उस समय के वाइसरॉय कौन थे? सर उस समय के वाइसरॉय कौन थे? उस समय के वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। उस समय के वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, है ना, उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। तो सर पार्टीशन तो हुआ बंगाल का, तो कारण बताइए ना सर, कारण क्या था?
सर कारण थे दो, देयर आर टू रीजन, एक ब्रिटिश द्वारा दिया रीजन, द रीजन गिव बाय ब्रिटिशर्स, है ना, एक का ब्रिटिशर्स द्वारा गया, एक इंडियन द्वारा दिया गया, जो रियल थे, जो थे रियल। सर ये ब्रिटिश ने क्यों बोला, ब्रिटिश ने क्या रीजन दिए, ब्रिटिश ने रीजन दिए एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन मतलब होता है कि बंगाल वाज वेरी मच लार्ज, सो वी हैव टू डिवाइड, बंगाल बहुत बड़ा है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, तो ब्रिटिश बोले इसको डिवाइड कर दे। तो इंडियंस से क्या बोले, व्हाट द इंडियंस से, इंडियंस बोले कि असल इट वाज रियल था ना, मैं बार-बार बोल ये रियल था, ये था डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल करना चाहते थे, डिवाइड करके रूल करना चाहते थे, और ये रियल था, ये कहानी रियल था कि हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कैसे करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, है ना, उधर बंगाल पर उधर आज के ये बांग्लादेश रीजन में कौन रहेंगे, मुस्लिम्स रहेंगे, और मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया आज भी ना, और इधर असम, बंगाल, बिहार रीजन में कौन रहेंगे, ओडिशा रीजन में कौन रहेंगे, हिंदू रहेंगे, है ना, तो इस तरह डिवाइड किया गया। तो ये कहानी का अंत होता है, बंगाल पार्टीशन आप समझ आया होगा, है ना, भाषा पढ़ाया गया। तो बंगाल पार्टीशन का इंपैक्ट भी तो होता है ना, इंपैक्ट होता है ना, इंपैक्ट ऑफ बंगाल पार्टीशन, इंपैक्ट नहीं आगे, इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल विभाजन का प्रभाव, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये आपको ये पार्टीशन मतलब ब्रिटिश जो सोचकर पार्टीशन किया गया था, है ना, यहाँ पर कहानी अलग हो गया, द स्टोरी वाज वेरी मच नाउ डिफरेंट, द स्टोरी वाज नाउ वेरी मच डिफरेंट। दे वांटेड टू डिवाइड द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदू मुस्लिम, but here the people started the another movement, okay, people started the another movement to unite the people of India, and the movement was known as Swadeshi and boycott movement, Swadeshi and boycott movement, Swadeshi and boycott movement, Swadeshi and boycott. Swadeshi means the goods that's made in the India, and the boycott means to avoid, not to buy the products that came from the where, Europe, or the especially from the England. Swadeshi means to use or buy, to use or buy products manufactured in India, manufactured in India, manufactured in India। स्वदेशी मतलब हम लोग भारत में बने हुए सामान को यूज करेंगे, ना, भारत में बने हुए सामान को यूज करेंगे। And what is the boycott? Not to buy products, not to buy products manufactured in Europe, manufactured in Europe। तो यूरोप में बने हुए सामान को यूज न करना, इतना वेरी इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। What was the impact of the Bengal? Sorry, partition of Bengal. The impact of partition of Bengal was Swadeshi and boycott movement. अगर बंगाल पार्टीशन होते ही नहीं तो शायद भारत में स्वदेशी और boycott movement कभी शुरू होते ही नहीं। और आपको बाद में पढ़ेंगे, ओके, बाद में पढ़ेंगे स्वदेशी और boycott movement और भी आगे गया during the period of the non-cooperation movement. ओके, महात्मा गांधी द्वारा किया गया movement non-cooperation movement 1920। So Swadeshi means to use or buy products manufactured in India, and boycott means not to buy products that manufactured in
यूरोप स्पेशली इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड में ब्रिटिश स्टार्ट, इंग्लैंड के थे, है ना, इंग्लैंड का ही आसपास के तो नहीं थे, तो इतना आसानी था, इतना आसान। सो नथिंग टू बी वरी, ओके, नथिंग टू बी वरी। चैप्टर इज वेरी मच इजी, पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, ओके, आराम से पढ़ेंगे, है ना, ज़्यादा टेंशन लेंगे नहीं, ज़्यादा टेंशन लेंगे नहीं। तो समझ आ गया स्वदेशी बोयकॉट मूवमेंट, समझ आ गया ना, अंडरस्टैंड स्वदेशी बोयकॉट मूवमेंट। नाउ इट्स हैपेंड इन 1906, अब याद होना चाहिए ना, 1906 का रखा था। स्वदेशी boycott movement started in 1906. I forgot to write. Now 1907, the period comes 1907. Sorry, 1907. इसको हम लोग सूरत स्प्लिट। उस समय सूरत में आईएनसी का क्या हो रहे थे, सेशन हो रहा था, 1907 में सेशन था। इस स्प्लिट मतलब टूट जाना, दो भाग में बढ़ जाना। स्प्लिट मतलब दो भाग में बढ़ जाना, दो भाग में बढ़ जाना। तो ये व्हाट इज दो भाग में बढ़ जाना? कैसे आईएनसी दो भाग में बटेंगे? नाउ आईएनसी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। आईएनसी नहीं, वो आईएनसी होगा, ओके, आईएनसी के पार्ट होंगे। शुरू यहाँ पे होता है आईएनसी डिवाइडेड into two groups, पार्ट में होगा, ग्रुप्स into two groups, है ना। one is moderates who wanted the independence in a non-violent and peaceful way. Another one is radicals, उग्र बोलते हैं, उग्रवादी नहीं है, उग्रवादी नहीं होता। radicals means extremists, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सट्रीमिस्ट, हम बोलेंगे इसको एक्सट्रीमिस्ट, मतलब नरमपंथी और चरमपंथी। याद करने के लिए सिर्फ नरमपंथी दल और चरमपंथी दल। So in the 1907, INC was divided into two groups. One is moderates and one is radicals. अब ध्यान देंगे ये दोनों ही आईएनसी के थे, अलग अलग नहीं थे, ओके, दोनों ही क्या थे? आईएनसी के अलग अलग थे ही नहीं, क्योंकि लाल बाल पाल भी आईएनसी के मेंबर थे, लाल बाल पाल होते मेंबर ऑफ आईएनसी, एंड moderates were also the member of the INC. फेमस मॉडरेट्स के नाम लेंगे आप, तो गांधी जी बोलेंगे, महात्मा गांधी जी। फेमस मॉडरेट्स यू विल कॉल महात्मा गांधी जी। जब है ना फेमस रेडिकल्स के नाम पे आप बोल लेते हैं ना, आप लोग लेंगे सुभाष चंद्र बोस एंड भगत सिंह। सुभाष चंद्र बोस एंड भगत सिंह आपको याद मतलब एग्जाम्पल देकर समझ आता है, कि एग्जाम्पल देने के बाद आपको अच्छे समझ आता है। मतलब एक अहिंसावादी, एक हिंसावादी, ये अहिंसा विश्वास करते थे, अहिंसा पीस में, और ये हिंसा में विश्वास करते थे। 1907 में जाकर ये लोग अलग हो गए, मगर 1916 again they unite, फिर 1916 में जाकर ये लोग एक आपस से क्या गए थे, मिल गए। 1916 में मिल, अब क्या मिला, कैसे मिला, ये बाद में चर्चा करेंगे, अब क्योंकि आप लोगों को विस्तार से आगे बढ़ना। ये 1907 1907 and 1906 was very important. 1905, 06 and 07 were the important period in the history of India. Okay, history of India. 1906 में, इससे पहले बताना था, I forgot, sorry, okay, इससे पहले बताना था, मैं भूल गया, okay। अब एक चीज होता है, कुछ सोचिए, मतलब लोगों को बहलाने के लिए, मतलब उन लोगों को मन पे किसी की ओर गुस्सा प्रकट करवाने के लिए, उन लोगों को डिवाइड करने के लिए, लोगों को एक आपस अलग करने के लिए ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम लोगों को क्या बोला कि हिंदू हैव अ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड आईएनसी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आईएनसी वेर हिंदूज एंड देयर इज नो एनी organization for the
मुस्लिम, मुस्लिम तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो अब ब्रिटिशर्स मुस्लिम को उकसाने लगे, ओके, उकसाने लगे कि आप लोग भी क्या बनाइए, संगठन में ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जहाँ पर मुस्लिम अपना डिमांड रख सके। तो इसलिए 1906 में बनता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हो जाते। तो देखिए 1905 में किया गया कार्य पार्टीशन ऑफ बंगाल 1906 में जाकर क्या हुआ, सफल हुआ। डिवाइड एंड रूल हुआ कि नहीं हुआ, डिवाइड एंड रूल हो गए। तो ब्रिटिश जो चाहते थे अब उसमें वो लोग कामयाब हो रहे थे। तो व्हाट एवर द ब्रिटिशर्स वर once, now they were getting the success, they were getting the success। हमारे हम ही लोग थे ना, हम ही लोग थे, इसके चलते इन लोगों ने हमारा भरपूर फायदा उठाया। इसलिए गांधी जी कहीं पर बोलते ही, ओके, गांधी जी ने कहीं बोला है ब्रिटिशर्स भारत में बहुत स्प्रेड हुआ है, बहुत जगह फैला है, कंट्रोल किया है ड्यू टू द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस ओनली। भारतीय कोऑपरेट, अगर इंडियंस को सपोर्ट ही नहीं करते तो शायद कभी ब्रिटिशर्स भारत में उतना ज़्यादा पावरफुल होते नहीं, क्योंकि सपोर्ट करने वाले लोग हम ही थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल का इतना ज़्यादा विरोध किए, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम विरोध किया। फिर एक साल बाद क्या होता है, मुस्लिम के लिए संगठन बनता है ना। दो वी हैव सपोर्टेड द partition of Bengal full-fledgedly, either it is Muslim, either it is Hindu, either it is Sikhs, either whatever. But again, what the British want, they were succeeded in their ideas, and finally there was another organization was formed for the Britishers, and the name of that organization was All India Muslim League। इसका लिखिए कि थोड़ा सा नोट्स, एक मिनट what to paragraph है ना। I am teaching you in a simple language, okay? I am teaching you in a very simple language। उतना ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ रहे आप, उतना ज़्यादा you are not writing the what do you call it? You are not writing the mains paper of UPSC and BPSC. You are just writing the answer of from the class 8, so don't be worried। 1906, okay, what happened? All India Muslim League was formed। All India Muslim League was formed। All India Muslim League was formed। Now the Britishers were getting the success, under the leadership of the Salimullah Khan। Is it? Under the leadership of Salimullah Khan, under the leadership of Salimullah Khan, under the leadership of Salimullah Khan। तो सलीमुल्लाह खान के अंडर में अब क्या बना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गए। और 1905 में जो मंगल पार्टीशन करने का आइडिया था 1906 में जाकर वो सफल भी हो गए, बिकॉज दे वांटेड टू डिवाइड द हिंदू एंड मुस्लिम ओनली, एंड दे वर सक्सीडेड। नाउ दे वर वेरी मच हैप्पी, Britishers were very much happy because they divide Hindu and Muslim। So under the leadership of Salimullah Khan, the All India Muslim League was formed in 1906। From here one question will come, when the All India Muslim League was formed, it was formed in the 1906। Who was the leader of, who formed the, under whose leadership All India Muslim League was formed? Under the leadership of the Salimullah Khan, and the members were Aga Khan, and none other than your important personality, who, like we have a image of the Mahatma Gandhi ji in the Indian currency, that person also have a image in Pakistani currency। He was Muhammad Ali Jinnah,
He was also an advocate. Advocate थे. Gandhi भी advocate थे. Nehru भी advocate थे. Advocates are very dangerous. Okay. Advocates are very dangerous. Salimullah Khan, I'm related the Salimullah Khan. This was for All India Muslim League was formed, and the prominent member during the formation of the All India Muslim League was Aga Khan and the Muhammad Ali Jinnah. यहाँ तक भी अभी तक पाकिस्तान जैसे शब्द का यूज नहीं होता है. पाकिस्तान तो बाद में आता है कि पाकिस्तान शब्द तो बाद में सुनाई देता लोगों को. ओके, अभी तक ये लोगों का अभी लोग चाहते नहीं थे कि दे डोंट वांट अ सेपरेट नेशन. ओके, अभी लोग सेपरेट नेशन नहीं चाहते थे. ओके, सेपरेट नेशन नहीं चाहते थे. सो व्हाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म. ओके, दे डोंट वांट सेपरेट नेशन. उस समय के लोग अलग देश में चाहते ही नहीं थे. दे वांट व्हाट दे वांट. व्हाट वाज द डिमांड ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? दे वांट separate electorate for Muslim. Separate electorate for Muslim. Separate electorate for Muslim. क्योंकि इंडियंस की अब इंडियन ही हो गए, हिंदू हो गए, हिंदू ही हो गए. तो स्पेशली फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम के लिए क्या बनाया गया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाया जाता है. हो गया. अब उसके बाद बेटा so after that we will study another topic. Okay, that is Morley-Minto reform. Okay, Morley-Minto reform पढ़ेंगे हम लोग. Morley-Minto reform. एक होमवर्क ग्रुप में भी दे दूंगा. ओके, यहाँ पर भी आप लोग याद कीजिए. Who was Morley and Minto? ओके, मैं आई हैव ऑलरेडी टॉट इन द क्लास. मैंने क्लास में बताया. मोरले एंड मिंटो ये दोनों को अलग अलग है. दीज पर्सन टूज आर वेरी मच. लॉर्ड मिंटो है ना मोरले का पूरा नाम. ओके, लॉर्ड मिंटो एंड लॉर्ड मिंटो एंड मोरले कौन कौन थे? हु आर दीज पर्सनैलिटीज? मोरले एंड मिंटो. देखिए, समय थे 1909 1909. The one act was kept that was known as Morley-Minto reform. Morley-Minto reform. Morley-Minto reform. है ना? Morley-Minto reform. उसको क्या बोलते? What is the name of the Morley-Minto reform? Act of 1909. Act of 1909. Reform Act उसको बोलते हैं हम लोग. Reform Act. ओके, इंडिया एक्ट. इंडिया जो इंडिया एक्ट ऑफ 1909. रिफॉर्म आते, कानून में परिवर्तन आते. ओके, तो इसमें क्या क्या होता है? इंडेक्टमेंट. फर्स्ट टाइम indirect election was introduced. First time indirect election was introduced. Another separate electorate for Muslim. Separate electorate for Muslim. Another, what you see? Separate electorate for Muslim. Legislative council were reorganized. Legislative council reorganized. Number of Indians
executive member of Viceroy, executive members of Viceroy के executive में members को बढ़ाया जाता है. It will come for the 3 marks and write any form. What were the objectives होते ना? What were the objectives of the 1909 Morley Minto reform ने क्या क्या दिया? ये 4 चीज में अब 3 याद करें. That is very easy. Okay, ना 3 याद करने से आपका हो जाएगा. Okay, nothing to be worry. मुझे ना आराम से पढ़ना होगा. Okay, आराम से पढ़ना होगा. Separate electorate, separate electorate for Muslim. So these are okay. So we are today we study 4 topic: Bengal partition, South Asian boycott movement, Muslim League, and the Morley Minto reform. So till here we will study. Next class we will study the revolutionary activities of the Indian national movement. There where we study Khudiram Bose, B.D. Savarkar, Bhikaji Kama, and Ajit Singh, Lala Hardayal. We will study the story of that particular personalities. Okay, till there, thank you, have a good day, and God bless you all.